is an important arterial road connecting Harsil Valley from the main Uttarkashi city. Major General A.K. Sivaj is on the telecast with me. Major General Sivaj, it's something that in terms of the rescue operations, relief measures that are being taken, but the hurdle that is being faced is that these roads have crumbled. The landslides have happened from all sides of the hills, which means none of the roads, none of the arterial ways can be accessed by the army, by the NDRF, by the STRF. So it becomes almost next to impossible to rescue the civilians that at this point of time are missing. Now there is information coming in that very soon heli services are going to be deployed, because there is no way that any vehicles can travel and use the roads, because all access is completely cut off. In a situation such as this is precarious, this is difficult, this is something that we are helpless with. How are people going to be rescued? Absolutely, Megha, no doubt about it. It's a huge challenge. You see what happened in the two cloudbursts has taken place, one after the other. One at Dharali at about 1:40, and then within about another 10-15 minutes, another big cloudburst which has taken place very close to the Harsil. Now, due to this, what has happened is that the complete road at many places have been swept. The bridges have been destroyed, and the main bridge which is there in Kheer Ganga, river, which connected from Uttarkashi to Harsil via Dharali, that has been also damaged. Now, the biggest problem, which is threefold. One is that inclement weather is there, the helicopters cannot fly, and therefore the evacuation cannot take place of the casualty. Second, what is the very important thing is, since the communication system is broken, the bridges are broken, the road is not able to be used at many places until the BRO repair it. You will not able to send the relief and rescue operation material, cutters, which are diggers. You see, I was totally involved in 2011 also in Uttarakhand when I was sub-area commander Uttarakhand. So I am aware. Now the problem comes with this, until and unless this material does not reach, there may be a manpower available there, but till the time you do not have equipment, you cannot walk. The third very important thing is that the people are still stuck under the slush. One does not know that how many have been killed and how many are still missing. So it is a very big challenge, but unfortunately what has happened that after 12 o'clock the weather has improved, the helicopter services started. The Indian Army is already basically using C-295 transport aircraft to bring the stuff up till Dehradun, and from Dehradun they are trying to bring it through the ALH and also basically by Mi-17. Now, I can also tell that what the Indian Army is likely to do is they will also press in Chinook helicopter, because there is a huge helicopter wherein you can also lift a bulldozer and a heavy equipment. Subject to that there is a good helipad available and the weather condition very fine. One very good thing is that the helipad which was there in Harsil for civilian, that has been now not able to be used because it has come under slide. But there are two smaller helipad of the Indian Army that is still function. So there is a huge challenge. There is no denying the fact. Three things: rescue, you have to do it. The people who are struck, and the people have to be evacuated. Right. Third thing is that I will come back to you, sir. I'm being joined by my colleague who is in Uttarkashi right now. He's reporting live for us. शुभम, हमें इस समय पता चल रहा है कि एक और रोड क्रम्बल हो चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है. ये रोड आर्टीरियल रोड है, मानीरी को उत्तराखंड से, उत्तराकाशी से कनेक्ट करती है. इसके बारे में क्या सूचना दे पा रहे हैं आप? जी देखिए, इस वक्त जो है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये हेलीपैड का क्षेत्र है, और आप अगर देखें तो यहाँ पर जो है नज़दीक में एक हेलीपैड का जो है पूरा यहाँ पर स्थान बनाया गया है, जहाँ पर जो है लगातार रेस्क्यू जो अभियान चलाया जा रहा है. यहीं पर
जो है हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुँच रहा है और यहाँ पर SDRF NDRF की टीमें भी यहाँ पर आपको कैमरे पर दिखाई दे रही होंगी। ये जो NDRF और SDRF की टीमें हैं ये पूरी तौर से जो है यहाँ पर साजो सामान के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और यहीं से जो है सारा सामान जो है हेलीकॉप्टर में डिप्लॉय किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर जो है मौके जहाँ पर पूरा हादसा हुआ है इस तरह का, वहाँ पर जो है इसको पूरा डिप्लॉय कर रहा है सामान को और उसके बाद जो है जो घायल हैं उनको कहीं ना कहीं जो है उसको पहुंचाया जा रहा है, या तो अस्पताल पहुंचाया जा रहा है या फिर अगर गंभीर स्थिति के हैं तो उनको एम्स में भी पहुंचाया जा रहा है। लगातार क्योंकि प्रदेश के सभी अस्पताल जो है इसके लिए प्रिपेयर्ड है पहले से ही, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर रेस्क्यू कार्य लगातार चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, बिना रुके यहाँ पर रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। बस ये है कि एक मौसम की जो है एक सहायता चाहिए थी कि मौसम यहाँ पर सही रहे। फिलहाल जो अगर मौसम की बात हम यहाँ करें तो अभी जो है हालांकि आसमान में बादल छाए हुए हैं लेकिन मौसम फिलहाल जो है बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी साइन है क्योंकि हवाई सेवा के लिए भी जो है एक अनुकूल माहौल ज़रूरी होता है और ऐसे में फ़िलहाल जो है रेस्क्यू कार्य एक अच्छी तरह से किया जा रहा है, हम ये समझ सकते हैं। हालांकि जो है आज के लिए भी जो है ऑरेंज अलर्ट जो है प्रदेश में यहाँ पर उत्तरकाशी ज़िले के लिए रखा गया है। बावजूद इसके मौसम फ़िलहाल जो है मददगार साबित हो रहा है। अभी रेस्क्यू अभियान जो है लगातार चल रहा है। जब तक ये पूरा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जो है इस तरह की टीमें लगातार जो है तैनात यहाँ पर रहेंगी। सभी अलर्ट मोड पर हैं, अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। दिन में यहाँ पर जो है SP सिटी और इसके साथ जो है यहाँ पर जिलाधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे, मौके पर मुआयना करा। यहाँ से हेली सेवा के माध्यम से जो है मौके पर पहुँचे और वहाँ पर पूरी स्थिति देखी। मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर दोपहर में पहुँचे और तमाम जो प्रभावित हैं उनसे मुलाकात करी। उन्होंने इसके साथ ही जो है यहाँ पर रसद सामग्री पहुँचाने के साथ ही, क्योंकि यहाँ पर जो है रोड्स जो है कई जगह पर रोड्स ब्लॉक हो चुके हैं, कई जगहों पर जो है रोड्स का जो हिस्सा है 50 से 100 मीटर का हिस्सा वो जो है पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो जो है रोड कनेक्टिविटी नहीं है, एयर कनेक्टिविटी के सहायता से ही, उसकी मदद से ही जो है वहाँ पर पूरा Shubham, in fact, stay on with me. The Uttarakhand Chief Minister Pushkar Dhami has now released a fund of 20 crore rupees to deal with the disaster within the next 12 hours. Remember, this is the first time when the IAS and the IPS officers were deployed in the disaster affected area within 12 hours of the disaster. Shubham is back on the telecast with me. Shubham, 12 crore rupees that have been announced by the Chief Minister of the state for disaster and relief measures. How are these funds going to be utilized? जी बिल्कुल, बात करें तो क्योंकि ये जो है कल दोपहर के वक्त ये पूरा हादसा हुआ था और अचानक ही इस हादसे ने इतनी ज़्यादा इतनी भारी जो है मात्रा में इसने तबाही मचाई कि उसको कहीं ना कहीं जो है एक जो है स्थिति जो है असमंजस की और ऐसी स्थिति बन गई कि कहीं ना कहीं जो है मौके पर टीमों को पहुंचाना और इससे अब तमाम जो है कार्य जो है कल दोपहर से किए गए। दोपहर यहाँ पर जो है 3 जगहों पर यहाँ पर जो है क्लाउड बस्ट यहाँ पर देखा गया और उसके बाद से जो है स्थिति और ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुंच गई। हालांकि जो है सभी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार डट गई। मुख्यमंत्री ने जो है तमाम रिपोर्टें देखी और तमाम जो है अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से बातचीत करी और स्थिति का जायज़ा लिया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अनुभव किया है कि इसके लिए जो है फ़ंड रिलीज़ करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थिति, विपरीत परिस्थितियों वाला प्रदेश है। हर साल मानसून के महीने में यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्रों में एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाएँ यहाँ पर जो है बड़ा जन और जान माल का हानि जो है बड़ी मात्रा और बड़ी संख्या में करती है। तो उसके अनुसार उन्होंने जो है जल्द ही जो है 20 करोड़ रुपए जो है वो जो है उन्होंने मंजूरी उसकी दे दी। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो इसकी त्वरित कार्रवाई करी है, इसकी एक तो बेहद ही ज़रूरत थी इस पूरे रेस्क्यू कार्य को करने के लिए, और जो है इसकी सहायता से जो है रेस्क्यू कार्य को और ज़्यादा तेज़ी के साथ किया जा सकेगा। और क्योंकि हादसा होने के बाद जो है अब राहत और बचाव के कार्य चल रहे हैं, तो इसमें कार्यों में जो है मदद मिलेगी। जो प्रभावित हैं कहीं ना कहीं उनको जो है आर्थिक मदद मिलने के साथ ही जो है उनके तमाम पुनर्वास के जो काम है वो जो है बेहतर तरीके से किए जाएंगे। हालांकि क्योंकि जो है छोटा राज्य है प्रदेश उत्तराखंड, इसके लिए जो है इसमें केंद्र की मदद लगातार इसकी ली जाती है और केंद्र की मदद की सहायता से जो है कहीं ना कहीं उत्तराखंड इसकी जो बड़ी चुनौती है उसको कहीं ना कहीं पार पा लेता है। और ऐसे में स्थिति ये देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के दोनों के सहयोग से आपदा प्रबंधन का जो कार्य है वो बेहतर तरीके से हो पाता है। Shubham, thank you for giving us those updates. I'm being joined